Hello guys, in this lecture we are going to study about the RC coupled amplifier. So this is our lecture number 5 in analog electronics. If you have not watched the previous lecture, then you can click on the I button and you can watch the previous lecture. So it will be easy for you to understand this lecture. So let us start our presentation with the RC coupled amplifier. So in this lecture we will study about the introduction to the RC coupled amplifier, that what is RC coupled amplifier, then we will see the construction of the RC coupled amplifier, and we will see the operation of the RC coupled amplifier, and at last we will study about the frequency response of the RC coupled amplifier. So we will start our presentation with the introduction to the RC coupled amplifier. So यहाँ पे RC coupled amplifier जो होता है उसको हम रेसिस्टर कैपेसिटर कपलिंग मेथड बोलते हैं, और इसका शॉर्ट में हम RC कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं. तो RC कपल्ड एम्पलीफायर में क्या होता है कि रेसिस्टर कैपेसिटर को दो एम्पलीफायर स्टेजेस के बीच में कनेक्ट किया जाता है सिग्नल को कपल करने के लिए. इट इज़ द कैपेसिटिव कपलिंग मेथड विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड कपलिंग मेथड इन द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. तो ये RC कपल्ड मेथड जो होता है वो एक्चुअली कैपेसिटिव कपलिंग मेथड होता है, जिसका प्रिंसिपल जो होता है वर्किंग प्रिंसिपल वो कैपेसिटेंस पे काम करता है. तो ये पॉपुलर मेथड होता है जो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ किया जाता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को बनाने के लिए. सो दिस कपलिंग मेथड इज ऑल्सो नॉन एज DC ब्लॉकिंग मेथड बिकॉज इट विल ब्लॉक द DC कंपोनेंट. सो एज यू हैव स्टडीड in the previous lecture also about the coupling method that it blocks the DC component, that's why it is known as the DC blocking circuit or DC blocking coupling method. Now we will see the construction of the two stage amplifier or construction of the RC coupled amplifier. So you can see here the circuit diagram for the same is given here. Here the two stage amplifier circuit has two transistors which are connected in the common emitter configuration, and a common power supply VCC is used. You can see here in the given figure, this is our stage number 1 and this is our stage number 2. So these two transistors T1 and T2 are connected in common emitter configuration, and the same supply voltage VCC is applied in both cases, in both stages. Here Cin is the input capacitance present at the initial stage of the amplifier which couples the AC signal to the base of the transistor. तो यहाँ पे Cin हमारा जो होता है इनपुट कैपेसिटेंस होता है, जो भी हम इनपुट AC सिग्नल को सप्लाई कर रहे हैं वो उसको कपल करके हमारे बेस टर्मिनल में सप्लाई करता है. और यहाँ पे R1 and R2, here R1 and R2 is the potential divider circuit and RE is the emitter bypass capacitor that provide the low reactance path. तो यहाँ पे R1 और R2 जो है हमारा वोल्टेज डिवाइडर या फिर पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का काम करता है, और RE जो होता है वो लो रिएक्टेंस पथ का काम करता है, लो रिएक्टेंस पथ प्रोवाइड करता है ताकि हम स्टेबल आउटपुट वहाँ पे ले सकें. And here RL is the load resistance or the load impedance, and CC is the coupling capacitor that connects the two stages and prevent the DC interference between the two stages and control the shift of the operating point. तो यहाँ पे CC हमारा जो है बेसिकली वो एक कपलिंग कैपेसिटर है. यहाँ पे देख सकते हो CC कपलिंग कैपेसिटर दोनों स्टेजेस के बीच में कनेक्ट किया गया है, जिसका फंक्शन होता है वो DC कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा, DC इंटरफेरेंस से हमारे सर्किट को बचाएगा और AC करंट को पास करने देगा, अलाउ करेगा उसको. और एक इसका और इम्पोर्टेंट पॉइंट इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होता है कि सर्किट में ऑपरेशन जो ऑपरेटिंग रीजन होता है ऑपरेटिंग को वो शिफ्ट नहीं होने देगा, उसको कंट्रोल करके रखेगा, उसको स्टेबल करके रखेगा. तो चलिए अब देखते हैं ऑपरेटिंग ऑफ द RC कपल्ड एम्पलीफायर. इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है. सो हियर व्हेन एन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर T1, देन दिस सिग्नल इज एम्पलीफाइड ड्यू टू द ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन फैक्टर. तो यहाँ पे हम जो भी
AC इनपुट सिग्नल को दे रहे हैं वो एम्पलीफाई होके हमारे आउटपुट कलेक्टर तक यहाँ पे पहुँचता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम मान लो कि हमने IB यहाँ पे इनपुट बेस करंट को अप्लाई किया तो उसको एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है ट्रांजिस्टर को, जिसको हम बीटा बोलते हैं, तो उसको बीटा टाइम से इंक्रीज करेगा, बीटा टाइम्स IB हो जाएगा। उस जहाँ जो हम आउटपुट करंट यहाँ पे ऑब्टेन करने वाले हैं कलेक्टर के टर्मिनल में, वो बीटा टाइम्स IB हो जाएगा, तो उसको बीटा टाइम से इंक्रीज कर देगा। अब उसके बाद में बात आती है दिस आउटपुट इज पास टू दी coupling capacitor CC to the next stage as an input signal and CC blocks the DC and allows only AC signal to pass। तो यहाँ पे जो हम आउटपुट यहाँ पे ऑब्टेन करने वाले हैं तो उसको हम क्या करेंगे, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू पास करेंगे नेक्स्ट स्टेज में। तो नेक्स्ट स्टेज में जो यहाँ से सिग्नल जाएगा वो उसके लिए इनपुट सिग्नल होगा। एंड द टोटल गेन, तो यहाँ पे जो कपलिंग कैपेसिटर होगा वो क्या करेगा, DC कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा और AC सिग्नल को अलाउ करेगा नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट द टोटल गेन इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल गेन बिकॉज द इफेक्टिव लोड रेसिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द संटिंग इनपुट रेसिस्टेंस। तो संटिंग इनपुट रेसिस्टेंस की वजह से जो टोटल गेन होगा वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के गेन से लेस होगा because of the effective load resistance of the first stage and that is reduced due to the shunting input resistance, and hence in the multi-stage amplifier only the gain of the last stage remains the unchanged। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सर्किट में जो लास्ट स्टेज में हम गेन ऑब्टेन करेंगे वो नहीं चेंज होगा, बाकी जो इंटरमीडिएट स्टेज में जो भी जितने भी हम टोटल गेन ऑब्टेन करेंगे वो कम होगा प्रोडक्ट ऑफ द इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल गेन। तो चलिए अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द RC कपल्ड एम्पलीफायर। सो वी कैन डिफाइन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व is a graph that indicates the relationship between the voltage gain and the function of the frequency। तो एक ऐसा कर्व होता है जो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गेन के बीच में एक रिलेशन शो करता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे देख लीजिए जो रिएक्टेंस द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी से इन्वर्सली रिलेशन में होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो होगा और फ्रीक्वेंसी लो होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई होगा। तो इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी, जब हम फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, फ्लैट रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये यहाँ पे फ्लैट रिस्पॉन्स दे रहा है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो कर्व हमारा जो आ रहा है वहाँ पे वो कांस्टेंट हो रहा है, फ्लैट दे रहा है। बट इफ़ यू हैव सेलेक्टेड द फ्रीक्वेंसी आइदर बिलो 50 हर्ट्ज और अबव द 20 किलो हर्ट्ज देन द रिस्पॉन्स विल बी लो फ्रीक्वेंसी रोल अप और हाई फ्रीक्वेंसी रोल अप। तो जब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को या तो फिर 50 हर्ट्ज से कम लेते हैं या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो होगा वो रोल अप हो जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, फ्लैट नहीं रहेगा। तो ये है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द RC coupled amplifier। So friends, if you like this video then you can like the video and subscribe to my channel for more updates। Thanks for watching।